हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 17 चैप्टर मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सेविंग्स एंड क्रेडिट यानी बचत तथा साख। So it is necessary to understand the concept of saving and credit to comprehend financial institution properly. For the concept of saving and credit, we need to understand the following three situations. कि वित्तीय संस्थाओं के संबंध में गहनता से जानने के लिए यह आवश्यक है कि बचत एवं साख की अवधारणाओं को समझा जाए। बचत और साख की अवधारणाओं को समझने के लिए हमें निम्नलिखित 3 स्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पे हमें 3 सिचुएशंस दी गई हैं, उन सिचुएशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पंकज lives at Katrathal village in Sikar district with his parents, true brother and a sister. He is an educated and energetic young man. He got his vocational education from a good institution and he wants to establish his own business. He has many options and good knowledge of the market. He also knows the techniques of business perfectly well. Yet he is not in a position to set up his business for lack of money. His father is a simple farmer and can fulfill only the needs of the family. In this situation, Pankaj has only one option, that is to borrow this requisite capital. अब पंकज राजस्थान के सीकर जिले के कटराथल गांव में अपने माता पिता, 2 भाई, एक बहन के साथ रहता है। वह एक शिक्षित और ऊर्जावान युवक है। उसने अच्छे संस्थान से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है तथा वह अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहता है। उसके पास व्यवसाय के अनेक विकल्प तथा उसे बाजार की अच्छी समझ है। वह व्यवसाय के तरीकों को भली भांति जानता है, फिर भी पूंजी के अभाव में वह स्वयं का व्यवसाय स्थापित नहीं कर पा रहा। उसके पिता एक सामान्य कृषक हैं जो परिवार की आवश्यकता को ही पूरा कर पाते हैं। इस स्थिति में व्यवसाय स्थापित करने हेतु पंकज के पास एकमात्र विकल्प है कि वह आवश्यक पूंजी जो उसे बिजनेस के लिए चाहिए वह उधार प्राप्त करे। अब हम आते हैं सेकेंड सिचुएशन पे। संजय lives at Rajpura village in Jhunjhunu district. His parents are old. He is the eldest of 3 brothers and sisters and the only earning member in the family. He has a small field of 2 hectares. He earns for his family from the income of agriculture on his field. He has the liability to fulfill the needs of his family members. Income from agriculture is insufficient for his family. It is necessary for Sanjay to borrow money from a person or an institution to fulfill the basic needs of the family. संजय झुंझुनू जिले के राजपुरा गांव में रहता है। उसके माता पिता वृद्ध हैं तथा सामान्यतः बीमार रहते हैं। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ा तथा परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसके पास 2 हेक्टेयर का एक छोटा सा खेत है। वह इसी खेत में कृषि कार्य करके प्राप्त आय से अपने परिवार का गुजारा चलाता है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व भी उसी का है। कृषि कार्य से प्राप्त होने वाली जो उसकी आय है उससे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है, यानी जो उसकी इनकम है उससे वो नहीं पूरा कर पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु यह उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि संजय किसी भी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक धन जो उसको चाहिए वह उधार में प्राप्त करे। अब हमारे पास में सिचुएशन आती है थर्ड। नितेश एंड हिज वाइफ चांदनी lives in Jaipur. Nitesh is a bank employee and his wife is also in government job. Both are economical in nature. They have also inherited good economic base. Both fulfill their basic needs with small proportion of their income. So they have surplus amount for their income as saving. In situation first, Pankaj needs to take loan to set up his business, and in the situation 2, Sanjay has to take loan for consumptions. Giving loan or lending money is called credit in the economy. Generally, credit shows the reputations of financial credibility. On that basis, a person or institution can take loan on a promise to pay in future or get goods or services without paying in cash. It is clear that the word credit in the economics is used for providing
finance for loans. In exchange, one party purchase goods and other sell it. Purchase and sell are two sides of the same merchandise. In the same way, in financial transactions, one party borrow or takes loans and the other party provide credits, lending or loaning. Thus, in financial transactions, the amount loan will be same as amount giving on credit. अब हम बात करें कि तीसरी सिचुएशन की। नितेश तथा उसकी पत्नी चांदनी जयपुर में रहते हैं। नितेश एक बैंक कर्मी है तथा उसकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है। दोनों मितव्ययी भी नहीं है। मितव्ययी है मतलब कि बहुत कम खर्चा करते हैं तथा उन्हें विरासत में भी अच्छी जो आर्थिक जो सहायता है वो आधार मिला है। दोनों अपनी आय के छोटे से हिस्से से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देते हैं। अतः इनके पास आय का एक पर्याप्त हिस्सा बचत के रूप में बच जाता है। अब हम यहाँ बात करें कि फर्स्ट सिचुएशन जहाँ की पंकज को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु और सेकंड सिचुएशन में संजय को उपभोग हेतु उधार प्राप्त करने हैं, अर्थात ऋण लेने की क्या है उन दोनों को आवश्यकता है। अर्थशास्त्र में ऋण या उधार प्रदान करने को ही साख या क्रेडिट कहा जाता है, प्रदान करना कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो साख शब्द वित्तीय सुदृढ़ता की प्रतिष्ठा को भी बताता है, जिसके आधार पर व्यक्ति या संस्था भविष्य में भुगतान के वायदे के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं या बगैर नकद भुगतान किए वस्तुओं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में साख शब्द का उपयोग ऋण के हम ये कहें कि ऋण हेतु लिया जाता है। जिस प्रकार विनिमय में एक पक्ष वस्तु को बेचता है तो दूसरा पक्ष वस्तु खरीदता है। क्रय तथा विक्रय यानी खरीदना और बेचना एक ही सौदे के दो पक्ष हैं। इसी प्रकार वित्त या कोष में लेन देन में एक पक्ष उधार लेता है या ऋण प्राप्त करता है तो दूसरा पक्ष जो होता है वो साख उधार प्रदान करता है। इस प्रकार वित्तीय लेन देन में जितनी राशि ऋण की प्राप्त होती है उतनी ही राशि प्रदत्त साख की होती है। अब हम करें थिंक ओवर सिचुएशन थर्ड। जो थर्ड सिचुएशन हमारे सामने यहाँ पे दी गई है नितेश और उसकी वाइफ की। वी सी दैट नितेश एंड चांदनी हैव लार्ज अनयूज्ड पोर्शन ऑफ इनकम। द पोर्शन ऑफ इनकम विच वॉज नॉट कंज्यूम्ड कॉल्ड सेविंग। सो सरप्लस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन इज इनकम। कि हम तीसरी स्थिति पर विचार करें तो हम पाते हैं कि नितेश तथा चांदनी के पास आय का एक बड़ा हिस्सा जो कि वो यूज़ नहीं कर रहे हैं या उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया बचत कहलाता है। अतः उपभोग पर आय का आधिक्य ही बचत है, यानी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद जो हम बचा रहे हैं वही हमारी क्या है, सेविंग्स है। मैनी क्वेश्चंस अराइज हियर। यहाँ पे कई सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। फ्रॉम वेयर संजय विल गेट लोन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। वेयर विल नितेश एंड चांदनी कीप देयर सेविंग सेफ। कैन नितेश एंड चांदनी डायरेक्टली लैंड देयर savings to Pankaj and Sanjay, but there are many possible practical problems in it. First, Nitesh and Chandni do not know the financial behavior of Pankaj and Sanjay. They will always have the fear of losing their hard-earned money. Second, in case they have sudden need of money somehow, and Pankaj and Sanjay may or may not be able to return money at short notice. Third, it is also possible that Nitesh and Chandni do not know Pankaj and Sanjay. Actually, they are two separate parties, one who takes loan and one who lends money. We need a mediator between them who can connect both the parties. Financial mediators play this role. अब हम कहें कि यहाँ पर हमारे सामने अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे पंकज को व्यवसाय स्थापित करने हेतु पूंजी कहाँ से उपलब्ध होगी, संजय को अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण कहाँ से प्राप्त होगा, नितेश तथा चांदनी अपनी बचतों को कहाँ सुरक्षित रखेंगे, क्या नितेश तथा चांदनी अपनी बचतों को सीधे ही पंकज तथा संजय को उधार दे सकते हैं, नितेश तथा चांदनी द्वारा पंकज तथा संजय को सीधे ही उधार दिया जाए तो, लेकिन इसमें अनेक व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, होने की भी प्रबल संभावना है। जैसे कि हम कहें कि पहले
यदि नितेश तथा चांदनी यह नहीं जानते हैं कि पंकज तथा संजय का आर्थिक व्यवहार कैसा है, कि उनका जो फाइनेंशियल बिहेवियर है वो कैसा है, तो उन्हें ऋण देने पर सदैव अपनी गाढ़ी कमाई को डूबने का भय रहेगा, यानी कि उनको ये डर रहेगा कि कहीं उनका जो पैसा है वो कहीं डूब ना जाए जो उनको वो उधार दे रहे हैं। द्वितीय, यदि किसी कारण से उन्हें पैसे की अचानक आवश्यकता पड़ जाती है नितेश और चांदनी को, तो पंकज तथा संजय इतनी छोटे से नोटिस पर कम समय में पैसे लौटाने में क्या समर्थ होंगे या नहीं होंगे। थर्ड, अगर हम प्रॉब्लम देखें तो यह भी संभव है कि नितेश तथा चांदनी का पंकज तथा संजय से कोई परिचय ही नहीं हो। वास्तविक रूप में ऋण देने वाला तथा अंतिम रूप से ऋण लेने वाला दोनों अलग अलग दो पक्ष हैं, दो पार्टीज़ हैं, और उनके बीच एक सेतु यानी एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है जो इन दोनों पक्षों को जोड़ सके। यह भूमिका जो है वित्तीय मध्यस्थ अदा करते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, फाइनेंशियल मीडिएटर्स जो होते हैं वो इन पार्टीज़ को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में। अब हम इन्हीं फाइनेंशियल मीडिएटर्स की बात करते हैं, यानी वित्तीय जो मध्यस्थ होते हैं, फाइनेंशियल जो मीडिएटर्स होते हैं, ये कौन होते हैं। तो फाइनेंशियल मीडिएटर्स आर दोज इंस्टीट्यूशन और पर्सन हु वर्क एज लिंक बिटवीन लैंडर एंड बोरोवर इन द मार्केट। ये वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थान तथा फर्म हैं जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वालों के बीच एक सेतु या हम कहें कि एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर का कार्य करते हैं। These institutions get money from those who spend less than their income and thus save money and provide credit to those persons and institutions who need money for consumption or production. When the investors deposit their savings with them, they get due interest and there is a little risk of losing money. Deposit or can take back their deposit at short notice. In the same way, borrowers and institutions also get much benefits from these financial mediators. Financial mediators have also availability of money. They lend money at normal rate of interest and on easy term. Bank is an important mediator. ये संस्थान उन व्यक्तियों से धन प्राप्त करते हैं जो अपनी आय से कम खर्च करते हैं, अर्थात बचत करते हैं, तथा उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पैसा उधार उपलब्ध करवा देते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता होती है, जैसे संजय और पंकज को है। जब बचतकर्ता अपनी बचतों को इनके पास जमा करवाते हैं तो उन्हें उचित ब्याज भी प्राप्त होता है तथा धन डूबने का जोखिम भी बहुत कम होता है। जमाकर्ताओं के पास यह भी सुविधा होती है कि उन्हें जब ज़रूरत हो वे अपनी जमाओं को तुरंत या अल्प सूचना पे, शॉर्ट नोटिस पे वापस ले सकते हैं। इसी प्रकार उधार लेने वाले व्यक्तियों तथा संस्थानों को भी वित्तीय मध्यस्थों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। वित्तीय मध्यस्थों के जो मीडिएटर्स होते हैं के पास सदैव धन की उपलब्धता बनी रहती है। ये उचित ब्याज दर पर तथा स्वीकार्य आसान शर्तों पर जो है पैसा उपलब्ध करवाते हैं। बैंक जो हम बात करें तो बैंक जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ है। बैंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडिएटर, जो ऐसे लोगों के बीच में मीडिएटर का काम करता है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है और जो लोग सेविंग्स करते हैं। तो बैंक जो है एक ऐसा मीडिएटर है जहाँ पे नितेश और चांदनी जैसे लोग जिनकी एक्स्ट्रा जो सरप्लस इनकम होती है वो वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं, और संजय और पंकज जैसे लोग जिनको की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे इंटरेस्ट पे पैसा ले सकते हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, यानी साख के संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोत, यानी जो पैसा जो है वो कौन कौन हमें दे सकते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट्स। देयर आर मैनी पीपल whose expenses are more than their income। अर्थव्यवस्था में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनके व्यय उनकी आय से अधिक होते हैं, यानी जो वो पैसा कमा रहे हैं उनसे ज़्यादा उनके क्या हैं, खर्चे हैं। इन द सेम वे पीपल who are engaged in production work or business need more money to increase their business। इस आधिक्य व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अनेक लोग जो उत्पादन क्रिया या व्यवसाय में संलग्न हैं उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु भी अधिक पैसों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फॉर दिस दे टेक लोन, और इसके लिए वो क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। ठीक है।
फिर हम ये कहें कि पीपल कैन बोरो मनी from different financial sources. On the other hand, there are people whose expenses are less than income. They want to earn interest on their savings. For this, they deposit their savings in those financial institutions. Financial institutions borrow and lend money like deposits, loans, investments, etc. Bank, cooperative societies, money lenders, and local bankers are financial institutions. They can be classified as traditional and non-traditional sources कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग वित्तीय स्रोतों से साख प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके व्यय उनकी आय से कम है, यह अपनी बचतों पर ब्याज कमाना चाहते हैं, अतः ये अपनी बचतों को हम ये कहें कि वित्तीय संस्थाओं में जमा करवा देते हैं। वित्तीय संस्था वह संस्था होती है जो वित्तीय लेन देन के कार्य करती है, जैसे कि पैसे जमा करना है, ऋण देना है, निवेश करना है आदि संपन्न करती हैं। जैसे कि हम बात करें, बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं, साहूकार हैं, देशी बैंकर हैं आदि। इन वित्तीय संस्थाओं को संस्थागत और जैसे कि ट्रेडिशनल और गैर संस्थागत नॉन ट्रेडिशनल जो है स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर हम बात करें traditional money lending institutions are registered under government and reserve banks. They are governed, controlled and guided by the Reserve Bank of India and the government. They inform about all activities to their controlling institution. They do not work only for benefits. They have to afford many social liabilities. They also lend money to the poor and weaker sections. They have an important role in establishing economic equality by financial investment to economically weaker section. संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होती हैं, यानी इन्हें रजिस्टर करवाना होता है। इनका नियमन, नियंत्रण तथा निर्देशन जो होता है, हम ये बात करें कि जो इनका कंट्रोल करना होता है, इनको गवर्न करना होता है, इनको गाइड करना होता है, वो भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार के द्वारा किया जाता है। ये अपनी सभी क्रियाओं के संबंध में अपनी नियामक संस्थाओं को सूचित करते हैं, यानी जो इनको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट जो है वो इनको इन्फॉर्म करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा केवल लाभ के लिए ही कार्य नहीं किया जाता, इन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों को भी वहन करना होता है। ये संस्थाएं गरीब एवं कमज़ोर वर्ग को भी जो है साख प्रदान करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के वित्तीय समावेशन के द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना करने में इनकी बहुत बड़ी, हमें कहें कि महत्वपूर्ण इनकी जो रोल वो ये लोग प्ले करते हैं। अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर, वीक, बैकवर्ड एंड लो इनकम ग्रुप सेक्शंस at different affordable rates and join them with financial services। कि वित्तीय समावेशन हम उसे कहेंगे जहां समाज के गरीब, कमज़ोर, पिछड़े तथा निम्न आय वर्ग के जो वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। यानी जो गरीब सेगमेंट जो हमारा सोसाइटी का है, उनको जो है कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है ये लोग पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब इसमें है आपका नेक्स्ट टॉपिक कमर्शियल बैंक दैट वी हैव टू बी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।